নজর যে খবরে সংসদে আইন ডিআইএ জোটের বিক্ষোভ, মূলত বাজেট বিরোধী বিক্ষোভ। জোটের বিক্ষোভে এই শামিল মূলত তৃণমূল বলে জানা যাচ্ছে। বাংলা বিরোধী বাজেট হটাও স্লোগান উঠছে। ইতিমধ্যেই আপনাদের জানাবো সংসদে আজ বাজেট বিতর্ক রয়েছে। অন্যদিকে আইন ডিআইএ জোটের বিক্ষোভ চলছে, যেখানে কোচ শামিল তৃণমূল বাংলা বিরোধী বাজেট হটাও এই স্লোগান মুখরিত হচ্ছে। ছবি দেখাচ্ছি মূলত ইন্ডিয়া জোটের যারা শরিকরা রয়েছেন প্রত্যেকে উপস্থিত রয়েছেন এই বিক্ষোভে, ছবি দেখাচ্ছি। এবং গতকাল যে বাজেট পেশ করেছিলেন অর্থমন্ত্রী, তাতে বাংলার প্রাপ্তি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছিল। বাংলাকে বঞ্চনা করা হয়েছে, বাংলাকে কিছু নাই দিতে পারেন, কিন্তু বাংলাকে অপমান করলে মানুষ তার জবাব দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া ভাষায় জানিয়েছিলেন সাংবাদিক বৈঠকে। অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা বাজেটকে ব্যর্থ বাজেট বলেছিলেন। আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের তরফ থেকে মূলত সেই বক্তব্য তুলে ধরবেন। তার আগেই সংসদে আইএনডিআইএ জোটের বিক্ষোভের ছবিটা জানাবো। কি বলছেন বিক্ষোভকারীরা? और दूसरी चीज, जहां तक एक आम नागरिक की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका इकोनॉमिक सर्वे भी, सीएमआई की रिपोर्ट भी, और जितने भी ये एजेंसीज हैं इनकी जो भी सालाना रिपोर्ट्स आती है, साफ बताती हैं कि इस देश में आय तो बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आय महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ेगी तो इस देश का हर नागरिक एक महीने से गरीब होता जा रहा है। और उसके ऊपर निवेश करने वाली जो एक बहुत बड़ी तादाद थी इस देश में, उसको लाचारी के कगार पे लाकर सरकार ने खड़ा कर दिया। इसमें सबसे बड़ा मैं कहूंगा बॉडी ब्लो इस देश के इन्वेस्टर्स को दिया गया है, वो है इंडेक्सेशन की। जो लाभ आपको दिया जाता था वो आपसे छीन लिया। इंडेक्सेशन छीनना इन्वेस्टर्स पे टैक्स लगाना नहीं, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। आप इंडेक्सेशन रिमूव करके एक महीने में इन्फ्लेशन पे भी टैक्स ले रहे हैं। यानी कि आज तक आप खाने की कोई वस्तु खरीदें, कोई सुविधा खरीदें या इनकम कमाएं, उस पर तो टैक्स देते थे। अब आप महंगाई जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि आपसे इंडेक्सेशन की जो एक लाभ आपको दिया गया था वो आपसे सरकार ने छीन लिया है। तो कुल मिलाकर इस बजट ने लगभग हर तबके को नाराज किया है। सर, दिल्ली के हिस्से में क्या? অন্যদিকে কিরেন রিজিজু তিনি কি জানিয়েছেন শুনুন। तो अपोजिशन वाला को इस तरह का प्रोटेस्ट करके गुमराह करने का कोई फायदा नहीं है। सदन में चर्चा होगी, आज से बजट का चर्चा शुरू होगी और चर्चा के दौरान अच्छे बातें जो भी है या सुझाव देना वो दे सकते हैं, लेकिन बजट को इस तरीके से समझे बिना, बजट का मेरिट्स को देखे बिना ऐसे ही बजट को क्रिटिसाइज करना ये ठीक नहीं है। एक पॉइंट पे जाना चाहिए। কথা বলবো, ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত রয়েছেন আমার সঙ্গে। ইন্দ্রাণী, একটা বিষয় আজকে আর কিছুক্ষণ পরে যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি নিজেও বক্তব্য রাখতে উঠবেন, অর্থাৎ বাজেট নিয়ে যে সংসদে বিতর্ক হবে, কিন্তু তার আগেই দেখা গেল ইন্ডিয়া জোটের সব সদস্যরা তারা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। একেবারে বাংলা বিরোধী এই বাজেট একটা স্লোগান উঠছে। কি ছবি দেখছো ঠিক এই মুহূর্তে? দেখো, পার্লামেন্টের সংসদে যে মকরদোয়া তার সামনে আজকে বিক্ষোভ দেখালেন ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা, এবং সেখানে যোগ দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রায় সমস্ত সাংসদরা ওই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন। এবং এখান থেকে মূলত যে স্লোগান তারা দিয়েছেন, বাংলা বিরোধী বাজেট দূর হটাও দূর হটাও। অর্থাৎ গতকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বক্তব্য রেখেছিলেন যে এই বাজেট সম্পূর্ণভাবে বাংলা বিরোধী, বাংলাকে বঞ্চনা করা হয়েছে এবং এই বাজেটে সেভাবে বাংলার জন্য কিছুই বরাদ্দ নেই, এই বিষয়টি আজকে সংসদের সামনে তৃণমূল সাংসদরাও তুলে ধরলেন। এবং তাদের যেটা বক্তব্য যে এই বাজেট বাংলা বিরোধী, দেশ বিরোধী, এই বাজেটকে দূর হটাতে হবে। তোমাকে জানিয়ে রাখবো, 27 তারিখে আছে নীতি আয়োগের বৈঠক, এবং এই বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি আসছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেস শাসিত যে রাজ্যগুলো, সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা কেউ এই নীতি আয়োগের বৈঠকে আসবেন না। এবং এম.কে. স্ট্যালিন, যিনি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী, তিনিও কিন্তু এই বিষয়টিকে সমর্থন জানিয়ে বৈঠকে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আম আদমি পার্টি তারাও এই বৈঠকে যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যেখানে বাজেট নিয়ে
বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠলো আজকে লোকসভার সামনের মকরদুয়ার এবং এর পার্লামেন্টের ভিতরেও যখন বাজেট নিয়ে আলোচনা শুরু হবে তখন এই বিষয়ে কিন্তু বিক্ষোভ দেখাবেন বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। তবে তারপরে বাজেট বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করবেন তারা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাজেট বক্তৃতায় আজকে প্রথম বক্তব্য রাখবেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শর্মিষ্ঠা, ধন্যবাদ ইন্দ্রাণী। নজর থাকবে আজ প্রতিটা মুহূর্তের আপডেট আমি তোমার থেকে নেব এই মুহূর্তে। ধন্যবাদ। সঙ্গে ছিলেন ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত। जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। It's an anti-people budget. It has been partial towards state. Bengal has been neglected very badly. That's where protesting. इग्नोर किया गया है और खास करके महाराष्ट्र तो इनका अलायंस के साथ चल रहा स्टेट है। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से, जैसे मैंने कल कहा था, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कल घोषित की है, यूनियन बजट नहीं था वो, वैसे ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। जब महाराष्ट्र 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है। हर 1 रुपया जो जाता है केंद्र के पास, उससे हमें सिर्फ वापस 3 पैसे से लेकर 8 पैसे तक मिलते हैं। ये शर्मनाक है कि आज तक महाराष्ट्र के हित का काम नहीं किया और बाकी सारे राज्यों में भी, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, सेम भेदभाव देखा गया। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नो रिएक्शन। ये कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं। दिस इज जस्ट अ ड्रामा। Promises which will be kept in the paper will not be implemented. That's it. फिर से वंचित मोदी सरकार, हाय हाय मोदी हट जाओ देश बचाओ, मोदी हट जाओ देश बचाओ। उनको ये जस्ट टू सेटिस्फाई उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है? सड़क भैया रास्ता क्यों? अरे सबको कुछ नहीं दिया है।